Welcome to you in seventh lecture of thermodynamics. In this lecture, we discuss following topics: enthalpy of atomization, bond dissociation enthalpy, mean bond enthalpy, lattice enthalpy, and bond Haber cycle. We go in each topic one by one. First, we go enthalpy of atomization. देखिए इसमें लोग एग्जाम्पल से देखेंगे like this taken H2 gas or taken chlorine gaseous molecule and is broken in gaseous atoms, hence change in enthalpy is 435 kilojoule per mole. In the same way, there plus 242 kilojoule per mole. In the case of methane, when it is broken into atoms in gaseous state, then change in enthalpy during this reaction is 1665 kilojoule per mole. Now, see here, when 1 mole of a molecule, 1 mole of a molecule is broken into or dissociated into its atoms in gaseous state, then change in enthalpy is called heat of atomization of that molecule. For example, in the H2 gas, उसको हम लोग गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन एटम में ब्रेक करें तो ये एनर्जी आपकी रिक्वायर होती है, ठीक, ये एनर्जी चेंज होता है हमारे पास में, so it is called enthalpy of atomization of H2. In the same way for chlorine, enthalpy of atomization is 243, and for methane, enthalpy of atomization is 1665. When 1 mole methane gas is completely broken into its atoms, like there 1 carbon atom, 4 hydrogen atom, then change enthalpy is 1665 kilojoule per mole. Clear? So it is a heat of atomization of methane. Then we go bond dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpy ये क्या होती है, ध्यान दीजिएगा. हम लोग H2 में ही देखते हैं. या इसको ऐसे लिख सकते हैं H bond H, there how you define it. Okay, when 1 mole bond of same type is broken to free atoms in gaseous state, then change in enthalpy is called bond dissociation enthalpy of that bond. जैसे यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोजन एटम है, उनके बीच बॉन्ड बन रहा है. इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड 1 मोल बॉन्ड के लिए वो ये. So it is called bond dissociation enthalpy and it is written as in this way. Clear? It's a bond dissociation enthalpy. और ध्यान रखेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में
जो मीन बॉन्ड एंथैल्पी है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के इक्वल होती है। अब मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, आइए उसको देखते हैं हम लोग एग्जांपल से। वी टेक मेथेन। मेथेन में आपको मालूम है दिया CH बॉन्ड 4, सिमिलर बॉन्ड्स हैं हमारे पास में। ठीक, आइए देखते हैं इनके लिए। CH4 in gaseous state, it's broken into in this particles. यानी यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक किया गया in this way, इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, फर्स्ट बॉन्ड। इसमें जो एनर्जी हमारे पास में रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात कर रहा है। बॉन्ड एंथैल्पी किसके लिए होगी हमारे पास में आपकी, CH3 बॉन्ड H के लिए, या योग लिख सकते हैं H बॉन्ड CH3 को। क्लियर? एंड दिस इज 427 किलोजूल पर मोल। It is bond dissociation enthalpy for bond H bond CH3. Bond dissociation enthalpy है। In the same way, CH3 is broken into CH2 and H in gaseous state, and bond dissociation enthalpy of H bond CH2 is indicated by this sign, and it is 439 kilojoule per mole. Now again, when CH2 is broken into CH and H, then bond dissociation enthalpy for this bond is 452 kilojoule per mole, and for CH bond it is broken into in this way. So bond dissociation enthalpy of H bond C, hence it is calculated 347, experimental value है ये आपकी, ठीक, ये वैल्यू। So these are bond dissociation enthalpies. Now take sum of all, it will be enthalpy of atomization. It will be sum of all, that is 427, 439, 452 and 347. Clear? Its sum is 1665 kilojoule per mole. Now you find mean bond enthalpy. Mean bond enthalpy. It will be mean of all bond dissociation enthalpies, that is upon 4, 1665 upon 4. It comes approximately 416 kilojoule per mole. Clear? So in polyatomic molecules, mean bond enthalpy is average value of all bond dissociation enthalpies. But in the diatomic molecule, mean bond enthalpy is equal to the bond dissociation enthalpy. Clear? Now we go next topic. Lattice enthalpy. What is lattice enthalpy? जैसे आपको आयनिक कंपाउंड्स में मालूम है क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म a lattice of cations and anions. For example, in the sodium chloride, sodium ions and chloride ions make a lattice, एक जाल बना लेते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे NaCl है, यह आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में है। क्लियर? अब इसके आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करें,
आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करके यहां पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस को अलग करें इन दिस वे, और इनको गैसेस स्टेट में लाइए आप और देखिए व्हाट क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, what quantity of enthalpy is changed, what quantity of heat energy is changed. It is here 788 kilojoule per mole. It is called the lattice enthalpy of NaCl. How you define it? When 1 mole of an ionic compound is completely dissociated in its ions in gaseous state, then change in enthalpy is called the lattice enthalpy of that ionic compound. Hence, lattice enthalpy of sodium chloride is 788 kilojoule per mole. इसको इजी वे में ऐसे कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है. इसको हम लोग हेल्स लॉ का यूज करके कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए एक साइकिल है, एक प्रोसेस है, उसे कहते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल. बॉर्न-हैबर साइकिल, बॉर्न-हैबर साइकिल प्रोसेस से हम लोग इसको यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? कैसे देखें यहां पर हैज में क्या होता है, हम प्रोसेस को एक स्टेप में या सेवरल स्टेप में कर सकते हैं, मगर सभी में एंथैल्पी चेंज सेम होता है. जैसे कि ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर NaCl बनाना हो तो कितने प्रोसेस यूज होंगे. पहले हम लोग सोडियम आपका सॉलिड फॉर्म में होता है और क्लोरीन इस फॉर्म में होती है. सबसे पहला काम क्या करेंगे, सोडियम को सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में लाएंगे, यहां फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. फिर सोडियम एटम को आयनाइज करेंगे, यहां फाइंड आउट करेंगे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. यहां पर Cl बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. ठीक, उसके लिए हमारे पास एनर्जी चाहिए होगी, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. 2 क्लोरीन मिल रहा है, हमें 1 की आवश्यकता है, उसको हाफ कर देंगे. नेक्स्ट फर्दर हमें क्या मिला, Cl एटम इन गैसेस स्टेट, उसको क्लोराइड आयन में कन्वर्ट करेंगे. Hence enthalpy change is called electron gain enthalpy. इस प्रोसेस से आपको Na+ और Cl- मिलेगा. फिर उनको कंबाइन करके हम लोग NaCl बनाएंगे, तो इससे क्या मिलेगा आपको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इतनी प्रोसेस आपकी आएंगी इसके बनने में, उन सबको हम लोग ऐड कर दें तो लैटिस एंथैल्पी बन जाएगा. ये बॉर्न-हैबर साइकिल. आइए देखते हैं इसको हम लोग, जैसे NaCl का एग्जांपल लेकर के चलते हैं. इन केस ऑफ NaCl you calculate lattice enthalpy. क्लियर? इसमें कितने स्टेप्स आपके आएंगे वो देखें. सबसे पहले फर्स्ट एंथैल्पी सब्लिमेशन, जहां सोडियम को सॉलिड स्टेट से हम लोग गैस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट व्हाट विल बी, क्लोरीन को भी हम लोग एटम स्टेट में लाएंगे, तो Cl2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, Cl एटम लाएंगे, तो बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसका हाफ कर देंगे. 1 क्लोरीन चाहिए, so they are half delta bond dissociation enthalpy. अब यहां पर जब को
सोडियम एटम मिला है उसको आयनाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, Na+ लाएंगे. इट इज अ प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन. सो चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. वहां यहां क्या मिलेगा आपको, क्लोरीन एटम, उसको Cl- में कन्वर्ट करेंगे. क्या करेंगे, वी एड 1 इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन एंड हेंस एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नाउ फर्दर क्या करेंगे, अब हमारे पास Na+ मिला, Cl- मिला, उनको कंबाइन करेंगे तो NaCl बनेगा. दैट इज डेल्टा फॉर्मेशन. इन सबको ऐड कर देंगे तो डेल्टा लैटिस हमको मिलेगा. देखिए इस प्रोसेस को हम लोग शॉर्टली फिर से देखते हैं. हमारे पास सोडियम सॉलिड स्टेट में है, सोडियम सॉलिड स्टेट में. इससे पहला काम क्या किया हमने, इसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट किया. सॉलिड टू गैस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सबलिमेशन. प्रोसेस ऑफ सबलिमेशन. Hence, heat is required called enthalpy of sublimation. Clear? This is. Its value is 108.4 kilojoule per mole. यानी कि आप सोडियम को Na में चेंज करेंगे तो यहां पर एंथैल्पी जो रिक्वायर्ड है वो 108.4 किलोजूल पर. यहां पर नेक्स्ट आपका ये क्लोरीन है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है हमको, इससे क्लोरीन एटम फाइंड करना है. तो क्या हुआ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. Cl बॉन्ड Cl ब्रेक होगा, उसका हाफ करेंगे. ठीक, दैट इज अ डेल्टा डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी होगी, उसका मैं हाफ करेंगे. यहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड. क्लियर? और ये वैल्यू जो हमारी आएगी हमारे पास में, ठीक, ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंटल, इट कम्स 496 किलोजूल पर मोल. यानी कि हम इसको इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं, इट गिव्स क्लोरीन गैस एंड देयर एंथैल्पी चेंज इन डिसोसिएशन इज 496 किलोजूल पर मोल. ये सब प्लस में है वैल्यूज. अब फर्दर हमें क्या किया गया है, सोडियम गैस को हम लोग सोडियम आयन में कन्वर्ट करेंगे. It is a process of ionization. As energy is required called enthalpy of ionization. Enthalpy of ionization. एक मिनट, ये वैल्यू 1 to 1 है. This value is 496 kilojoule per mole. That means when you convert sodium gas to sodium ion in gaseous state, then enthalpy changes 496 kilojoule per mole. Now इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्लोरीन एटम को क्लोराइड आयन में कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. ठीक, इसको हम यूं लिख सकते हैं, देयर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और यहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है. Hence energy is called this way. इस सिंबल से लिखते हैं Eg. Eg means इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये हमारे पास में वैल्यू. क्लियर? एंड इट इज वैल्यू इन माइनस 348.6 किलोजूल पर. You can write in this way, क्लोरीन, यहां तो इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकला था,
और यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है, ये डेल्टा Eg से लिखेंगे इसको, और ये नेगेटिव वैल्यू होती है 348.6 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यूज आपको गिवन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इनको लेकर के हम लोग बनाते हैं NaCl। यहां जो एनर्जी आपकी होगी वो डेल्टा फॉर्मेशन, यानी Na combines with chlorine to form NaCl, and change in enthalpy is called enthalpy of formation of NaCl. ये आपकी वैल्यू है, and this value is 411.2 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू कितनी है? 411.2 किलो जूल पर मोल। दिस वैल्यू, और मैंने कहा अब ये जो कंपाउंड हमारे पास में है, देख रहे हैं आप, ये इसको हम उसमें ब्रोकन करें या उससे इसको हम लोग यहां पर बनाएं, यहां जो एनर्जी आपकी होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। ये हमको फाइंड आउट करनी, तो ये हम लोग इस फॉर्मूले से इन सब वैल्यूज को पुट अप करके फाइंड आउट करेंगे। देखें कैसे। So you put all values and calculate lattice enthalpy of NaCl. First you put this value, this is 108.4. Now you put this value, it is 121. Now you put enthalpy of ionization of sodium, this is 496. Now again you put electron gain enthalpy of chlorine, it is minus 348.6. Now you put enthalpy of formation, it is 411.2 kilo joule. You calculate to it, it comes 788 kilojoule per mole. That is enthalpy of lattice of NaCl. So in this way we calculate lattice enthalpy of an ionic compound. Clear? यहां से हम लोग enthalpy of solution of NaCl भी फाइंड कर सकते हैं। enthalpy of solution कितनी हो जाएगी? उसको हम लोग दो भागों में देखेंगे। जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इट विल ब्रेक इनटू Na+Cl-, और यहां पर क्या वैल्यू होगी आपकी? लैटिस एंथैल्पी। और फिर Na+Cl- वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेट होंगे, ठीक, तो वो आपकी हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इस वैल्यू को रख करके एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू कितनी है? 788। अभी हम लोगों ने ये कैलकुलेट की थी। और ये वैल्यू जो होती है एंथैल्पी, ठीक, चलिए एंथैल्पी हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ NaCl, क्लियर? इट इज -784. यू कैन कैलकुलेट, सो इट विल बी 4 किलोजूल पर मोल। क्लियर? ये आज के टॉपिक्स थे आपके, इनको समझें, एंजॉय करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। ओके।